Yes, welcome all of you in Jazz Music Channel. Same Shri Surma Kapriya Acharya Shastri शिक्षक शास्त्री शास्त्री महाविद्यालय में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, शास्त्री थर्ड ईयर story for today. The story is very interesting story. First of all, we should know who composed, who wrote this story. V.M. Basiri. His full name was Vaikom Muhammad Basiri. He composed the first story, which is prescribed in Sanskrit third year. Vaikom Muhammad Basiri was born on 21 January 1908 and he passed away 5 July 1994. We can say that he was a freedom fighter. He had a great interest freedom fighter. Vaikom of English medium. He taught his primary education. He completed his primary education at Vaikom in England, and he was a follower of Mahatma Gandhi. We can say that he was a great attachment with the Mahatma Gandhi, and he was a follower of the Anwai, he was follower of Mahatma Gandhi, and he accepted the Swadeshi and Khadi. He believed in simple living and high thinking. 94, when Gandhiji came to Vaikom, he touched his hand and he described the conversation between the Gandhiji in his works and poems. And we can say that he was a great Malayalam poet. He was a great Malayalam poet. A Malayalam poet he mostly used to write in Malayalam, and after that he translated into English. And the story, what they is one of them. And we can say that he went to Delhi many times in 1944, and he was punished by the British government. And we can say that he was the prophet of Bhagat Singh and Chandrasekhar. ये चंद्रशेखर और भगत सिंह के भी बच्चे थे, and he went to jail many times for his freedom, fight freedom nature, and he got married in the age of 40, and his wife, which name was Habib Basir, and he had 2 children whose name was Anis and Saina. Anis and Saina were 2 son and daughter, and he settled in Baipur, and he suffered from 2 times in mental disease. We can say that he has become a mental person, but he recovered soonly. And we can say that this story which was published in 1944, ये कविता जो है 1944 के अंदर पब्लिश की गई थी, and I have told you the biography and introduction to the story writer V.M. Basir. बसीर का इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको बता दिया था। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म 21 जनवरी 1908 को हुआ था। जगह का नाम मैं बता रहा हूँ, थाला योला परमू। ये एक नॉर्थ साइड के अंदर अपने जगह है, साउथ साइड में। एंड ही वाज ए मलयालम पोएट, ये मलयालम पोएट थे, एंड he completed his primary education in Baipur, and he went to jail many times in 1944. He was the prophet of Bhagat Singh and Chandrasekhar and Sukhdev, and he got married with Habib, and he had a son and a daughter whose name was Anis and Saina, and he settled in a Baipur, and we can say that he suffered 2 times in mental illness and mental disease, but he recovered well and he composed this story in 1944, और उन्होंने 1944 के अंदर इस कविता की रचना की। अब विद्यार्थियों, हम इस कविता के बारे में जानते हैं। Who is the main protagonist writer and protagonist? Basir is the main hero, and we can say that the writer is himself
the main character in this story. The whole story revolves around the Batil, and he had to face many adversity in his life. He had to face many difficulties and problems in his life, but he did not lose heart. He had faith in hope because he was an optimistic person. क्योंकि बच्चों ये एक आशावादी पर्सन था, इसने कभी भी डिस्पेयर निराशा को नहीं देखा, हमेशा आशा ही रखता था, पॉजिटिव एटीट्यूड का था. बट ही हैड टू सफर मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ. उसके जीवन में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी उसने अपने जीवन के अंदर बच्चों हार नहीं मानी. वी कैन से दैट ही डज नॉट लूज होप. He does not lose hope in his life, and he had to face many problems, adversity in his life. कैसे आप में से पूछोगे सर इसने अपने जीवन में कौन सी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा? बच्चों इसका एक जन्मदिन था और उस जन्मदिन के अंदर ये भूखा रहा और उसके मील के लिए, भोजन के लिए कोई भी इसके पास पैसा नहीं. और बच्चों he looked very aristocratic people, rich person, but he was a poor person. और बहुत ही गरीब था. One day his friend whose name was Hamid organized a party. Hamid promised him, I will organize a party on your birthday. And it was the birthday of Muhammad Naseem. वैसे तक उसका जन्मदिन था और उसका एक दोस्त था और उस दोस्त ने उसको क्या किया, आमंत्रित किया कि भाई मैं तेरे जन्मदिन पर क्या करूंगा, एक पार्टी दूंगा. Would be organize a party on your birthday. When right this year he had gone out from the home और वो घर पे नहीं था that time. He became very depressed. He became very sad when he heard that his friend had forgotten his gift of birthday. क्योंकि उसका जो दोस्त था ना वो उसकी जन्मदिन की तारीख भूल चुका था और उसने कहा मैं तेरे जन्मदिन पर एक बढ़िया पार्टी का आयोजन करूंगा. तो बच्चों उसको जन्मदिन की पार्टी पर आयोजन नहीं किया गया. एंड द स्टोरी तो इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि इसको फ्रीडम फाइटर था. फ्रीडम फाइटर के पास पैसे कहां होते हैं? तो 5 प्रॉब्लम्स ही हैड टू फेस. 5 प्रॉब्लम्स इन दिस स्टोरी. फर्स्ट, उसका जो लैंडलॉर्ड था उसको चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था. जब आप किसी घर में रहोगे तो उसका जो ओनर है, मालिक है, वो आपसे पैसा मांगेगा और राइटर के पास कोई पैसा था नहीं और जन्मदिन होगा. इसलिए उसने क्या किया, उसने उसको ह्यूमिलिएट किया, प्रताड़ित किया. ह्यूमिलिएट का मतलब होता है उसको प्रताड़ित किया. बट ही डिड नॉट लूज हार्ट. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. फिर दुकान पर गया खाना खाने के लिए, उसने मना कर दिया. एक दुकान पर भी गया पैसा लेने के लिए, उसने मना कर दिया. उसने भोजन देने के लिए मना कर दिया कि पहले वाला चुकता करो, आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम मीट, तब मैं तुम्हें कुछ भोजन दूंगा. तो ही बिकेम वेरी डिप्रेस्ड एंड सैड. ही डिफिकल्ट. और फिर पुलिस उसके पीछे और थी बिकॉज ही वाज ए स्पाइसी नेचर. वो जासूसी टाइप का था और फ्रीडम फाइटर था. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस थी वो उसके पीछे थी. इसका कोई सामना करना पड़ा. उसके दोस्त ने पार्टी देने का वादा किया था, उसने भी उसको डिसीव किया और लास्ट में उसने क्या किया, उसके जो एक्वाइंटेंस पर्सन थे, एक्वाइंटेंस पर्सन, दे डिड नॉट गिव हिम ए कप ऑफ टी. उन्होंने उसको एक चाय का प्याला भी नहीं दिया. तो बच्चों उसको 5 प्रॉब्लम थे. कहां से घर में रहता था, उस घर में उसके पास दुकान के लिए पैसा नहीं था. दुकानदार के पास भोजन के लिए गया, उसके भोजन के लिए मना कर दिया. फिर वो पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि पुलिस के ग्रुप में थी बहुत है डिटेक्टिव पर्सन, वो जासूसी है, स्पाइसी नेचर पर्सन. और उसके बाद उसके दोस्त ने भी एक पार्टी देने का वादा किया, वो भी उस तारीख को भूल गया था. फिर उसने क्या किया, उसके एक्वाइंटेंस थे, परिचित थे, उन्होंने भी उसको एक हफ्ता नहीं दिया. इन द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में he had himself a grief and depressed. ग्रीफ का मतलब होता है उसने अपने आप को बंधु समझा, डिप्रेस्ड, एकदम उदास हो गया. बिकॉज क्यों उसको उदास हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. एडवर्सिटी का उसने फेस किया, उसने समस्याओं का, प्रॉब्लम का, एडवर्सिटी का उसने फेस किया. बिकॉज ही वाज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, क्योंकि वो एक
था, he had no specific nature, उसके अंदर विराटवादी कोई नहीं था। इन द एंड ऑफ द स्टोरी he inspired a person who gave him 2 आना on his birthday, उसको 2 आना दिए अपनी सैलरी में से। तो उसने कहा कि अभी भी लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी है, द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी लोगों के अंदर अभी भी है। ठीक है, इस संसार में बहुत से लोग कहते हैं डिसऑनेस्ट हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी आज हैं जिन्होंने मुझे 2 आना मेरे जन्मदिन पर दिया, और उस बच्चे ने जब उसको 2 आने का जन्मदिन पर दिया अपने फैमिली का हिस्सा, तो he became very pleased and he began to think, और वो सोचने लगा that human qualities are also available in this world, और आज भी मानव जाति के अंदर क्या है, ये चीजें उपलब्ध है। Thus we can say that in the end of the story, this story is a heart-touching story. The narrator is the most prominent character in this story. There are 5 problems which have faced to the writer and story writer. The message of the story is that the message of love and historical theme touches our heart, make the story appealing, और जो हमारे हृदय को टच करती है और रोचकता प्रदान करती है। इसलिए इस वक्त में कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में द स्टोरी व्हाट दे गिव ए मैसेज दैट वी शुड हैव आल्सो होप, वी शुड नॉट लूज हार्ट इन आवर लाइफ। हमें अपने जीवन के अंदर कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक नेचर का होना चाहिए। आशावादी व्यक्ति को क्या करती है, एक 12th क्लास के अंदर पोइम है हॉप पॉइंट। आशा क्या है, एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर रिस्पेक्ट है ना। ये एक हॉप पॉइंट से जल्दी जुड़ती रिलेटेड पोइम है, पोइम नहीं है, ये स्टोरी है। वो पोइम में भी आशा के बारे में बताया गया है कि आशा ही व्यक्ति के जीवन को क्या करती है, गो ऑन, जारी रखती है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कीप प्रैक्टिस, कीप स्माइल। थैंक यू एवरीबॉडी।